بلیٹن کا باقاعدہ آغاز کریں اور سب سے پہلے بات کریں لاہور ہائی کورٹ بار کے سالانہ انتخابات کے نتائج متنازع ہو گئے۔ الیکشن بورڈ نے پروفیشنل گروپ کے حمایت یافتہ صدارتی امیدوار بابر مرتضیٰ خان کو کامیاب قرار دے دیا۔ انڈیپینڈنٹ گروپ کے راج عامر خان 3781 ووٹ لے کر دوسرے نمبر پر رہے، جبکہ قاسم جاسم راہ 5429 ووٹ لے کر سیکرٹری لاہور ہائی کورٹ بار منتخب ہوئے۔ انڈیپینڈنٹ گروپ کے راج عامر خان نے 3781 ووٹ لے کر دوسرے نمبر پر رہے۔ دوسری جانب وکیل رہنما احسن بون کے زیر صدارت جنرل ہاؤس اجلاس میں انڈیپینڈنٹ گروپ کے حمایت یافتہ صدارتی امیدوار راج عامر خان کو صدر لاہور ہائی کورٹ بار منتخب کر لیا گیا ہے۔ لاہور ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن کے سالانہ انتخابات اس وقت تنازع کا شکار ہو گئے جب شدید ہنگامہ آرائی اور بدنظمی کے دوران الیکشن بورڈ نے نتائج کا اعلان کر دیا اور پروفیشنل گروپ کے حمایت یافتہ صدارتی امیدوار بابر مرتضیٰ خان کو کامیاب قرار دیا گیا۔ نتائج کے اعلان کے بعد پروفیشنل گروپ کے وکلاء نے بابر مرتضیٰ خان کو کندھوں پر اٹھا کر جشن منایا۔ بابر مرتضیٰ خان نے میڈیا ٹاک بھی کی۔ آپ دیکھیں گے کہ ہم نے جس اپنے مینیفیسٹو پہ الیکشن لڑا، پاکستان میں رول آف لاء کے لیے، سپریمیسی آف کانسٹیٹیوشن کے لیے اور سول سپریمیسی کے لیے اپنا رول پلے کریں گے اور انشاءاللہ تعالی جس طریقے سے وکلاء کے اوپر آگے ایف آئی آرز ہوتی رہی ہیں، ہم اس چیز کو انشور کریں گے کہ کسی بھی وکیل کے خلاف کسی بھی صورت میں 780 کی ایف آئی آر بالکل درج نہ ہو۔ انڈیپینڈنٹ گروپ نے نتائج کو تسلیم کرنے سے صاف انکار کر دیا۔ وکیل رہنما احسن بھون کا کہنا ہے کہ پروفیشنل گروپ اور الیکشن بورڈ نے پولنگ میں دھاندلی کی۔ جنرل ہاؤس میں راجہ عامر خان کو صدر لاہور ہائی کورٹ بار منتخب کر لیا گیا ہے۔ الیکشن کا ٹائم ختم ہونے سے 1.5 گھنٹہ پہلے انہوں نے رزلٹ بنو کے اور ابھی سرور اٹھا کے پرائیویٹ جو وکیل ہیں، مجھے پتہ چلا ہے جی یہاں سے آپ یہ جو بتا رہے تھے اپنا اسیب بن یوسف جو وائس پریزیڈنٹ کے کینڈیڈیٹ ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ میرے سامنے کچھ لوگ اس کو اٹھا کے لے گئے ہیں، جس کا مجھے ابھی پتہ چلا ہے کہ جی حسن اقبال وڑائچ اٹھا کے اور مقصود بھٹر صاحب کے دفتر میں لے گئے ہیں۔ اگر یہ حالت ہے۔ امیدوار صدر ہائی کورٹ بار راجہ عامر خان، نائب صدر ہائی کورٹ بار حسیب بن یوسف، فائنانس سیکرٹری قرۃ العین ورک اور فوکل پرسن حام بن یوسف نے الیکشن بورڈ کے نتائج کو تسلیم کرنے سے انکار کر دیا۔ جب روک دیا گیا تھا، الیکشن رک گیا تھا، تو پھر جو باکسز تھے ان کو پروٹیکٹ کرنا چاہیے تھا تاکہ وہ پرچیاں کاؤنٹ ہو جاتی۔ ایک بار ہے نوشہرہ ورکاں بار جہاں کے 100% ووٹس ہمارے تھے۔ مجھے خود میرے ووٹرز نے بتایا کہ ہمارے 50 ووٹس مسنگ تھے، وہاں پہ صرف 50 لوگوں کا ووٹ کاسٹ ہوا، 50 لوگوں کا موجود ہی نہیں تھا سرے سے۔ یہ بہت بڑی دھاندلی ہے۔ یہ ان کی عادت ہے۔ آج جب کلیئر میجورٹی تھی، ایک اندھوں کو نظر آ رہا تھا کہ ہم جیت رہے ہیں، سارے لوگ ہمارے تھے، سارے ہمیں ووٹ ڈال رہے تھے، تو انہوں نے یہ دھاندلی کر کے یہ بڑی زیادتی کی ہے۔ بار میں کشیدہ صورتحال کے باعث پولنگ مقررہ وقت سے پہلے شام 4 بجے روک دی گئی تھی۔ متعدد امیدواروں اور وکلاء نے موقف اختیار کیا کہ ووٹنگ کا عمل مکمل اور شفاف نہیں تھا، اس لیے نتائج کا اعلان متنازع ہے، جبکہ دوسری جانب احسن بھون کے حق میں اور الیکشن نتائج کے خلاف شدید نعرے بازی کی گئی۔ الیکشن بورڈ کی جانب سے تاحال نائب صدر، سیکرٹری اور فائنانس سیکرٹری کی نشستوں کے کامیاب امیدواروں کا اعلان نہیں کیا جا سکا، جس کے باعث انتخاب میں حصہ لینے والے دیگر امیدوار بھی غیر یقینی صورتحال کا شکار ہیں۔ قانونی حلقوں کا کہنا ہے کہ بار کی انتخابی تاریخ میں پہلی بار نتائج متنازع ہوئے ہیں اور امکان ہے کہ معاملہ باقاعدہ قانونی چارہ جوئی تک جا سکتا ہے۔ کیمرہ ٹیم کے ہمراہ ملک محمد اشرف، سٹی 42۔ مہنگائی کا گراف اونچا، ریلیف کا قد نیچا، گراف روش پیرا پرائس کنٹرول مجسٹریٹس کو دھوکہ دینے لگے۔ مارکیٹ میں پھل سبزیوں کی منمانی قیمتیں برقرار ہیں۔ شہریوں کا پھلوں کی کوالٹی پر تشویش کا اظہار۔ سہولت بازاروں میں رمضان نگہبان بازار قائم، کم نرخ پر اشیاء کی فراہمی۔ رمضان المبارک میں بھی شہریوں کو ریلیف نہ مل سکا۔ گرا فروش پیرافورس پرائس کنٹرول مجسٹریٹس کی آنکھوں میں دھول جھونکنے لگے۔ بازاروں میں پھل سبزیوں کی من مانی قیمتیں وصول کی جا رہی ہیں۔ آلو کا سرکاری ریٹ 18 روپے جبکہ بازار میں 40 روپے کلو۔ پیاز سرکاری ریٹ 44، مارکیٹ میں 60 سے 80 روپے کلو۔ ٹماٹر سرکاری ریٹ 55 روپے، بازار میں 130 روپے کلو۔ لہسن سرکاری ریٹ 200، بازار میں 250 روپے کلو میں بیچا جا رہا ہے۔ انار کا سرکاری ریٹ 772، بازار میں 900 روپے کلو میں۔ انگور سفید موٹا سرکاری قیمت 420، بازار میں 700 روپے کلو۔ امرود سرکاری ریٹ 138، مارکیٹ میں 150 روپے کلو میں بیچا جا رہا ہے۔ دوسری جانب ایک اشرہ گزرنے کے باوجود بھی ہربنس پورہ رمضان بازار میں بیف اسٹال نہ لگ سکا۔ شہریوں نے متعلقہ حکام سے بیف اسٹال لگانے کا مطالبہ کیا۔ پہلے اشرے کے دوران سبزیوں اور پھلوں کی قیمتیں اور معیار کنٹرول رہا، تاہم چکن گوشت
गोश्त की कीमत में उतार चढ़ाव देखा गया। सारिफीन की जानिब से घी, ऑयल और चावल की कीमतों में कमी का मुतालिबा किया जा रहा है। शहरियों ने कहा कि हरबंसपुरा समेत दीगर रमजान बाजारों में चावल की अकसाम बढ़ाई जाएं और कीमतों में रिलीफ मजीद दिया जाए। बढ़ता माली सरप्लस मगर सूबाई खुद मुख्तारी पर सवाल बरकरार। पंजाब में माली साल 2025-26 में 700 अरब का सरप्लस होगा। मजमूई आमदन 5.3 खरब, अखराजात 4.6 खरब मुतवक्के है। ज़राए महकमा खजाना के मुताबिक पंजाब के तरक्याती अखराजात में 47% नुमाया इजाफा हुआ। बढ़ता माली सरप्लस मगर सूबाई खुद मुख्तारी पर सवाल बरकरार। पंजाब में माली साल 2025-26 में 700 अरब का सरप्लस होगा। सूबे की मजमूई आमदन 5.3 खरब रुपए जबकि अखराजात 4.6 खरब रुपए रहने का इम्कान है, जिसके नतीजे में काबिल जिक्र सरप्लस सामने आएगा। दस्तावेजात के मुताबिक टैक्स रेवेन्यू में 11% इजाफा हुआ है। नॉन टैक्स आमदन में 37% नुमाया कमी देखी गई। इसके बरक्स तरक्याती अखराजात में 47% इजाफा किया गया है। सूबाई आमदन में मजमूई इजाफा रिकॉर्ड किया गया है। ताहम पंजाब का इन्हिसार बदस्तूर विफाकी मुंतकली पर कायम रहेगा। माली माहिरीन का कहना है कि अगर ये सरप्लस तवील मुद्दत तक बरकरार न रह सका तो आइंदा बरसों में सूबे को दोबारा माली दबाव का सामना करना पड़ सकता है। माहौलियाती निज़ाम के अहदाफ का हसूल। पंजाब को आलमी बैंक से 13 अरब रुपए मिलने की तवक्को है। आलमी बैंक अदायगियाँ मुख्तलिफ इक़सात में करेगा। प्लानिंग एंड डेवलपमेंट बोर्ड ने बाकायदा तस्दीक कर दी। अदायगियाँ माहौलियाती निज़ाम से मुतल्लिक़ इस्लाहाती अहदाफ के हसूल से मशरूत हैं। पंजाब को आलमी बैंक की जानिब से माहौलियाती निज़ाम से मुतल्लिक इस्लाहाती अहदाफ के हुसूल पर तकरीबन 13 अरब 60 करोड़ रुपए की गैर मुल्की अदायगियों की तवक्को है। प्लानिंग एंड डेवलपमेंट बोर्ड पंजाब ने माली मुआवनत की बाज़ाब्ता तस्दीक कर दी। ये रकूम आलमी बैंक की जानिब से मुख्तलिफ अक़सात में जारी की जाएंगी। दस्तावेजात के मुताबिक मार्च 2026 में 84 करोड़ रुपए, मई 2026 में 2 अरब 50 करोड़ रुपए, जबकि जून 2026 में सबसे बड़ी किस्त 10 अरब 20 करोड़ रुपए मौसूल होने का इम्कान है। हुक्काम के मुताबिक ये तमाम अदायगियाँ माहौलियाती निज़ाम से मुतल्लिक तयशुदा इस्लाहाती अहदाफ की तकमील से मशरूत हैं, जबकि मजमूई तौर पर बेशतर गैर मुल्की फंड्स माली साल के आखिरी महीने में मिलने की तवक्को जाहिर की जा रही है, जो सूबे में माहौलियाती इस्लाहात और पायदार तरक्की के इक़दामात को तक़वियत देगा। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ ने बेवा कफालत कार्ड की मंजूरी दे दी है। बेवा कफालत कार्ड के तहत बेवा को 1 लाख रुपए मिलेंगे। महकमा ज़कात ईद से कबल 8 अरब रुपए ज़कात फंड की मद में तकसीम करेगा। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ ने बेवा कफालत कार्ड की मंजूरी दे दी। बेवा कफालत कार्ड के तहत बेवा को 1 लाख रुपए मिलेंगे। बेवा के साथ अगर एक बच्चा हो तो 25,000 इजाफे मिलेंगे। 2 बच्चों के 50,000 रुपए मिलेंगे। ईद के बाद ये कार्ड लॉन्च किया जाएगा। देही इलाकों की ज़कात कमेटियां लिस्ट तैयार करेंगे। बेवा कफालत कार्ड के लिए ऐप जारी की जाएगी। महकमे ज़कात ईद से कबल 8 अरब रुपए ज़कात फंड की मद में तकसीम करेगा। गुजारा अलाउंस जहेज फंड दीनी मदारिस की दी जाएगी। महकमे ज़कात ने कमेटियां कायम कर दी हैं। महकमे ज़कात ने इस सिलसिले में हकदारों की लिस्ट तैयार कर ली है और अब ज़कात फंड की मद में ये रकम तकसीम की जाएगी। 8वीं के बोर्ड इम्तिहान के लिए पेक्टा को ताहाल ग्रांट ना मिली। फंड्स इम्तिहानात पर खर्च होंगे। पेक्टा ने पब्लिशर्स की अदायगियाँ रोक ली। बोर्ड इम्तिहान के लिए हुकूमत से 90 मिलियन फंड्स की डिमांड की गई थी। पब्लिशर्स की 60% से ज़्यादा अदायगियाँ रोकी गई हैं। बकाया जात बोर्ड इम्तिहान के बाद अदा किए जाएंगे। 8वीं बोर्ड के इम्तिहान के लिए पेक्टा को ताहाल हुकूमत से ग्रांट न मिल सकी। पेक्टा ने पब्लिशर्स की अदायगियाँ रोक ली। रोके हुए फंड्स 8वीं जमात के इम्तिहानात पर खर्च होंगे। इम्तिहान 9 मार्च से लिया जाएगा। 10 लाख उम्मीदवारों को सवालिया पेपर्स और शीट्स पेक्टा फराहम करेगा। पेक्टा ने बोर्ड इम्तिहान के लिए हुकूमत से 90 मिलियन रुपए फंड्स की डिमांड की थी। पब्लिशर्स की 60% से ज्यादा अदायगियाँ रोकी गई हैं। अभी तक पब्लिशर्स को सिर्फ 40% तक अदायगियाँ कर दी गई। पेक्टा के तहत 8वीं बोर्ड का इम्तिहान 9 मार्च से लिया जाना है। अब पब्लिशर्स को बकाया जात 8वीं बोर्ड के इम्तिहान के बाद अदा किए जाएंगे। बोर्ड के इम्तिहान में 4 मज़ामीन का पेपर लिया जाना है। 10 लाख उम्मीदवारों को सवालिया पेपर और ई शीट्स पेक्टा की जानिब से फराहम की जाएंगी। सरकारी मेडिकल कॉलेजेस और टीचिंग अस्पतालों के हॉस्टल्स पर कब्जों का इंकशाफ हुआ है। गैर मुतल्लिका डॉक्टर्स अफराद को सरकारी टीचिंग अस्पताल और कॉलेजेस के हॉस्टल से निकालने का हुक्म जारी। ज़ेर तरबियत पोस्ट ग्रेजुएट डॉक्टर्स और हाउस ऑफिसर्स के लिए हॉस्टल में रिहाइश ना मिलना संगीन मसला बन गया। हॉस्टल से गैर मुतल्लिका अफराद फौरी निकाले जाएं। सूबाई मुहतसिब के नोटिस पर महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ ने मरासला भेज दिया।
सरकारी मेडिकल यूनिवर्सिटीज, कॉलेजेस और टीचिंग अस्पतालों के हॉस्टल्स पर कब्जों का इंकशाफ हुआ है। गैर मुतल्लिका डॉक्टर्स अफराद को सरकारी टीचिंग अस्पताल और कॉलेजेस के हॉस्टल से निकालने का हुक्म दे दिया गया। जेर तरबियत पोस्ट ग्रेजुएट डॉक्टर्स और हाउस ऑफिसर्स के लिए हॉस्टल में रहायश न मिलना संगीन मसला बन गया है। गैर मुतल्लिका अफराद हॉस्टल्स के कमरों पर काबिज हैं। इस संगीन सूरत हाल का सूबाई मुहतसिब की जानिब से नोटिस लेने के बाद महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ को भी होश आ गया। महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ ने वाइस चांसलर्स, प्रिंसिपल्स और MS साहिबान को मरासला जारी कर दिया। हॉस्टल से गैर मुतल्लिका अफराद को फौरी निकालने की हिदायत भी जारी की है। महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ ने मेडिकल इंस्टीट्यूशंस की इंतजामिया को हिदायत की कि गैर कानूनी कब्जा फौरी खत्म करके हकदारों को रिहाइश दी जाए। शहरियों को दरपेश मसाइल के हवाले से रिपोर्ट देखते हैं। फाजिया कॉलोनी की गलियों में जगह जगह बिजली के तारों का जाल फैला हुआ है, जो अहले इलाका के लिए वबाल जान बन चुका है। इलाका मकीनों के मुताबिक घरों के बाहर नस्बोल और उनसे लटकते तार किसी हमसे कम नहीं। इलाका मकीनों का कहना है कि कई बार शिकायत कर चुके हैं मगर कोई सुनवाई नहीं हुई। इलाका मकीनों ने मुतालबा किया कि मुतल्लिका इदारे फौरी नोटिस लें और खस्ता हाल तारों की मुरम्मत या तब्दीली को यकीनी बनाएं। फिरोजपुर रोड कायदे मिल्लत कॉलोनी की गलियां टूट फूट का शिकार, जगह जगह पत्थर बिखरे पड़े हैं। सीवरेज के पानी के जमा होने से सूरत हाल मजीद खराब, पैदल चलना भी दुश्वार हो गया। इलाका मकीनों का कहना है कि गलियों की मखदूश हालत के बायस रोजमर्रा की आमदोरफ्त मुतासर हो रही है। अहले इलाका ने मुतालबा किया कि मुतल्लिका इदारे फौरी तौर पर सड़कों की मुरम्मत और निकासी आपके निजाम को बेहतर करें। मुगलपुरा रोड पर वाक़या चिल्ड्रन पार्क खस्ताहाली का शिकार हो चुका है, जहाँ झूले टूट गए हैं। पार्क में घास की मुनासिब देखभाल न होने के बाद सब्जा भी मुतासिर हो चुका है। शहरियों ने मुतल्लिका इंतजामिया से मुतालिबा किया कि फौरी नोटिस लेकर पार्क की मुरम्मत और बहाली को यकीनी बनाया जाए। मशरक़ वस्ता की बदलती सूरत हाल, PIA ने खलीजी ममालिक का फ़ज़ाई ऑपरेशन मुअत्तल कर दिया। UAE, बहरीन, दोहा, कुवैत की परवाज़ें मुअत्तल। परवाज़ें इब्तिदाई तौर पर कल शाम या फ़ज़ाई हदूद की बहाली तक ऑपरेट नहीं होंगी। PIA की सऊदी अरब की परवाज़ें जारी रहेंगी। मशरिक़ी वस्ता की बदलती सूरत हाल के पेश नज़र PIA ने खलीजी ममालिक का फ़ज़ाई ऑपरेशन मुअत्तल कर दिया। PIA ने मुत्तहिदा अरब अमारात, बहरीन, दोहा और कुवैत की परवाज़ें मुअत्तल की हैं। परवाज़ें इब्तिदाई तौर पर कल शाम या फ़ज़ाई हदूद की बहाली तक ऑपरेट नहीं होंगी। PIA की सऊदी अरब की परवाज़ें जारी रहेंगी। रूट तब्दील कर दिया गया। परवाज़ें बोइंग 777 तैयारों पर मुंतकिल कर दी गई। तवील रास्ते से मंजिल मकसूद पर पहुँचेंगी। मुसाफिर परवाज़ों से मुतालिक PIA कॉल सेंटर 786-786-111 से राबता कर सकते हैं। मुस्लिम लीग काफ के सरबराह साबिक वज़ीर आज़म चौधरी शुजात हुसैन और सूबाई वज़ीर चौधरी शाफी हुसैन से सेनेटर सरदार अहमद खान लगारी और MPA सरदार मंसूर लगारी ने मुलाकात की है। ऑपरेशन गज़बुल हक की कामयाबी पर पाक फौज को खराज तहसीन पेश किया गया। चौधरी शुजात का कहना था कि पाकिस्तान की बहादुर मुसल्लह अफवाज ने दुश्मन को ईंट का जवाब पत्थर से देकर एक बार फिर कौम का सर फखर से बुलंद कर दिया है। ज़हूर इलाही रोड पर पाकिस्तान मुस्लिम लीग के सदर चौधरी शुजात हुसैन से सेनेटर सरदार अहमद खान लगारी और MPA सरदार मंसूर लगारी ने उनकी रिहाइश गाह पर मुलाकात की है। सूबाई वज़ीर सनअत व तिजारत चौधरी शाफी हुसैन भी मुलाकात में मौजूद थे। मुलाकात के दौरान पाकिस्तान के मजमूई सियासी और अमनो आमा की सूरत हाल पर बातचीत हुई। मुलाकात के लिए आए दोनों रहनुमा ने चौधरी शुजात हुसैन की खैरियत दरियाफ्त की। मुलाकात के दौरान दहशत गर्दों के खिलाफ पाक फौज के कामयाब ऑपरेशन गज़बुल हक पर पाक फौज को खराज तहसीन पेश किया गया। साबिक वज़ीर आज़म चौधरी शुजात हुसैन ने कहा कि पाकिस्तान की बहादुर अफवाज ने दुश्मन को ईंट का जवाब पत्थर से देकर एक बार फिर कौम का सर फखर से बुलंद किया है। पाक फौज का दुश्मन के खिलाफ ऑपरेशन गज़बुल हक पर सच्चे पाकिस्तानी की आवाज़ है। कौम अपने बहादुर मुसल्लह अफवाज को कामयाब कार्रवाई पर सलाम पेश करती है। अफगानिस्तान की जानिब से दरअंदाजी और जारहियत के खिलाफ अफवाज पाकिस्तान से इज़हार यकजहती के लिए लाहौर चैम्बर में अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई। सदर लाहौर चैम्बर फ़हीम रहमान सहगल ने कहा कि कौमी सलामती पर किसी भी किस्म का समझौता नाकाबिल कबूल है और पूरी कारोबारी बरादरी अपनी बहादुर अफवाज के शाना बशाना खड़ी है। सनअत व तिजारत में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए सदर फ़हीम रहमान सहगल ने वाज़ेह कर दिया कि अफगानिस्तान की सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ किसी भी किस्म की दहशतगर्दी या जारहियत के लिए इस्तेमाल नहीं होनी चाहिए। पाक फौज ने दुश्मन को हर महाज पर भारी नुकसान पहुँचाया है। दहशत गर्दों के 15 सेक्टर्स और 53 पॉइंट्स को निशाना बनाया गया और दुश्मन के 115 टैंक्स और बख्तरबंद गाड़ियाँ तबाह की गयी। उन्होंने पाक फौज के शहदा को खराज अकीदत पेश किया। ये जो प्रॉक्सी वार जो अफगानिस्तान के जरिए की गई है, इसके भी पीछे इंडिया है और हम स्ट्रॉन्गली कंडेम करते हैं। इस हवाले से पाकिस्तान की बिजनेस कम्युनिटी, स्पेशली लाहौर की बिजनेस कम्युनिटी अपने फील्ड मार्शल के साथ, अपनी तीनों अफवाज के सरबराहान के साथ, तीनों मुसल्लह अफवाज के साथ
सीसा पिलाई हुई दीवार की तरह खड़ी है। सीनियर नायब सदर लाहौर चैम्बर तनवीर अहमद शेख ने कहा कि पाकिस्तानी कौम अमन पसंद है, ताहम अपनी सालमियत और खुद मुख्तारी पर किसी भी किस्म की आंच नहीं आने देंगे। नायब सदर खुरम लोधी ने कहा कि पाकिस्तान में हालिया दहशतगर्दी और अफगान फोर्सेज के हमलों में बैरूनी सरपरस्ती शामिल है और दहशतगर्दों के बेशतर हमले अफगानिस्तान से मरबूत थे। जो इंडिया अपने आप को सुपर पावर समझता था, आज अल्हम्दुलिल्लाह उसको जो है ना वो ये करके दिखा दिया कि जब पाकिस्तान की आवाम और पाकिस्तान की आर्मी जब इकट्ठे होते हैं और अल्लाह की मदद जो कि होती है इंशाल्लाह, तो अल्हम्दुलिल्लाह हर चीज़ वो करके दिखाता है और आज हमने उनको शिकस्त दे के दिखाई। इन्होंने ये हमला अपनी जाती हैसियत में नहीं किया, इसके पीछे इसराइल, इंडिया और अफगानिस्तान का गठजोड़ था। जब पिछली जंग हुई है ईरान की इसराइल के साथ, उस वक्त ईरान ने सिर्फ एक मुल्क का शुक्रिया अदा किया था, वो पाकिस्तान था। ईरान पर हमले की तैयारी इसराइल ने पिछले चंद हफ्तों से की हुई थी। इन्होंने पहले पाकिस्तान को एंगेज किया है अफगानिस्तान के साथ, अफगानिस्तान में जंग शुरू करवा के पाकिस्तान की हमें एंगेज किया और उधर ईरान पर हमला कर दिया। इस मौके पर एग्जीक्यूटिव कमेटी के अरकान शाबान अख्तर, सैयद सलमान अली, फिरदौस निसार, राना मोहम्मद निसार, अहद अमीन मलिक, शेख मोहम्मद फयाज, आमिर अली और मोहसिन चौधरी भी मौजूद थे और उन्होंने अफवाज पाकिस्तान से मुकम्मल यकजहती का इजहार किया। कैमरा टीम के साथ शहजाद खान अब्दाली, सिटी 42। प्रेस क्लब मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन का ईरान पर हमले के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरा, मुजाहरीन की अमरीका और इसराइल के खिलाफ नारेबाजी की गई। मुजाहरे का मजीद अहवाल जानेंगे रोमेल इलियास से। जी रोमेल। मुस्लिमीन की जानिब से लाहौर प्रेस क्लब के बाहर एहतजाजी मुजाहरा किया जा रहा है, जिसमें के मुकामी क़यादत और कारकुनान की बड़ी तादाद ने शिरकत की है, जबकि मौलाना सैयद हसन रज़ा हमदानी ने इस मुजाहरे की क़यादत की है, जो मेरे साथ मौजूद हैं। इनसे बात करेंगे और जानेंगे कि इस हवाले से इनका क्या कहना है। बताएं जी, क्या कहेंगे मौलाना साहब, ईरान पर अमरीकी व इसराइली हमले, उसके बाद ईरान की जानिब से भी जवाबी जो कार्रवाइयाँ हैं वो जारी हैं, तो इस सारी सूरत हाल पर क्या कहेंगे आप? इंशाल्लाह ईरान जो है वो सुरखरू होगा। हमला अमरीका और इसराइल की तरफ से किया गया है और ईरान ने उसका रिप्लाई दिया है और पहले ही मरले में यकीनन उसको एक बड़ा नुकसान पहुँचा है कि जो उसके मुकामात थे कि जहाँ से वो उनकी फ्यूल इंजीनियरिंग होती या दीगर चीज़ें उनके बोट्स वगैरह के लिए काम आती थी, उन पैड्स के ऊपर अटैक्स हुए हैं जिसके लिए उनकी कमर टूटी है। अच्छा, आपने खिताब के दौरान कल 3 बजे कहा है कि एहतजाज फिर से होगा, उसकी तफसीलात बताइएगा। कल इंशाल्लाह 3 बजे लाहौर कौमी असम्बली के सामने माल रोड से रैली जो है वो यहाँ अमेरिकन कौंसलेट के सामने, प्रेस क्लब के सामने आएगी और जिसमें इंशाल्लाह पूरे जिंदा दिलाने लाहौर से अपील है कि उसमें जो शिरकत करें। ईरान वो ममलिकत है कि जिन्होंने सबसे पहले पाकिस्तान को कबूल किया, वो हमारे जुग़राफ़ियाई सरहदें भी उनसे मिलती हैं, हमारी दीनी सरहदें भी मिलती हैं, हमारे दिल भी उनसे मिलते हैं। वो सल्तनत इमाम रज़ा है और इंशाल्लाह ईरान के लिए तमाम मुसलमान, तमाम पाकिस्तानी, तमाम लाहौरी आवाज़ बुलंद करेंगे। जी बिल्कुल, ईरान पर होने वाले इसराइली और अमरीकी हमले के खिलाफ यहाँ पर जो एहतजाजी मुजाहरा किया जा रहा है वो अब इख्तिताम पजीर हो चुका है और कल दोपहर 3 बजे जो रैली है वो निकाली जाएगी पंजाब असम्बली से यहाँ शिमला पहाड़ी तक, जिसमें मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन की मरकज़ी क़यादत और कारकुनान की बड़ी तादाद शरीक होगी और जो मौलाना हसन रज़ा हमदानी है उन्होंने। जी रोमेल, बहुत शुक्रिया आपका। सालाना तकरीब तकसीम इनामात कारकर्दगी की सत्ताइश और मेहनत का सिला मिलने का यादगार लम्हा। यूनिक ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस के ज़ेर तमाम सालाना तकरीब तकसीम इनामात मुनक़िद हुई। डायरेक्टर यूनिक ग्रुप अमजद अली खान, मेंबर सूबाई असम्बली सईदा समरीन ने तुलबा का हौसला बढ़ाया। कारकर्दगी की सताइश और मेहनत का सिला मिलने का यादगार लम्हा। यूनिक ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन के ज़ेर एहतमाम सालाना तकरीब तकसीम इनामात मुनक़िद हुई। पंजाब यूनिवर्सिटी फैसल ऑडिटोरियम में मुनक़िदा तकरीब में सालाना कारकर्दगी की बुनियाद पर तलबा में इनामात तकसीम किए गए। डायरेक्टर यूनिक ग्रुप अमजद अली खान, मेंबर सूबाई असम्बली सईदा समरीन और इंटरनेशनल प्लेयर नीलम रियाज समेत मुख्तलिफ कैंपस की प्रिंसिपल्स, तलबा और वालिदैन ने शिरकत की। तालिबात की जानिब से सूफी कलाम की परफॉर्मेंस ने खूब समा बांधा। डायरेक्टर यूनिक ग्रुप अमजद अली खान और मेंबर सूबाई असम्बली सैयदा समरीन ने तलबा का हौसला बढ़ाया। मैं समझती हूँ कि स्टूडेंट्स के लिए ये फंक्शन बहुत ज़रूरी होते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स को इनकरेज करना चाहिए। जो सारा साल स्टूडेंट की जो मेहनत होती है, एक छोटे बच्चे के लिए सुबह उठना, सर्दी गर्मी में आना, पढ़ना और इतनी मेहनत करना, उसके बाद बहुत ज़्यादा होमवर्क का बर्डन है, तो इसके साथ साथ बच्चों को इतनी अटेम्प्ट करके अपनी क्लास में एक नुमाया कारकर्दगी दिखाना बहुत अच्छी बात है। इससे यकीनन उनके अंदर एक पावर आई है, एक मोटिवेशन आई है कि हमारी एफ़र्ट्स को एक्नॉलेज किया जाता है। अगर हम एफ़र्ट करेंगे तो ये जिसको कह लें मेरिट सिस्टम उनको डे 1 से पता चल गया है।
तो इस स्ट्रगल को, इस मेहनत को वो आगे कंटिन्यू रखेंगे। तलबा ने आज के दिन को अपने लिए यादगार लम्हा करार दिया। ग्रेड 6 की हेड ग्रेड हूँ, उसमें मैं टॉपर्स में जाती हूँ, तो मुझे 3rd पोजीशन आने पे मुझे अवार्ड मिला है। इसके अलावा मेरी बहुत ज़्यादा ऐसी दोस्तें भी थी जिनको अवार्ड्स मिले थे, लेकिन मैं इस बात पे ये खुश हूँ क्योंकि मेरी मेहनत का मुझे खुशी थी, जो मैंने मेहनत किया वो मेरी रंग लाई। तकरीब के अख्ताम पर अमजद अली खान की जानिब से मेहमानों को यादगारी सवेनियर्स पेश किए गए। कैमरामैन साकिब भट्ट के हमरा अबू बकर शेख, सिटी 42। यूनिक स्कूल पुराना कहना कैंपस में 3री सालाना तकरीब तकसीम इनामात का इनेकाद किया गया। तालीमी और हम निसाबी सरगर्मियों में नुमायां कारकर्दगी दिखाने वाले तलबा को एजाज़ात से नवाजा गया। तकरीब में प्रोजेक्ट डायरेक्टर मोहम्मद तोफैल सिप्रा ने बतौर मेहमान खासूस शिरकत की। प्रिंसिपल अनम उमर और वाइस प्रिंसिपल साइमान जुम ने भी शिरकत की। रंगारंग प्रोग्राम में तलबा ने शानदार परफॉर्मेंस पेश की। मिली नगमों, तकारीर और टैबलों ने तकरीब को 4 चांद लगा दिए। नुमाया कारकर्दगी दिखाने वाले तलबा में शील्ड्स और असना तकसीम की गई। तकरीब में वालिदैन की बड़ी तादाद ने शिरकत की और अपने बच्चों की कामयाबियों पर खुशी और फ़ख्र का इजहार किया। मेहमान खसूसी का कहना था कि ऐसी तकरीबात तलबा के एतमाद में इजाफा करती हैं और उन्हें मज़ीद मेहनत की तरगीब देती हैं। सर्विसेज इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज में दिमागी बीमारी मिर्गी के कौमी दिन के मुनासबत से सेमिनार और आगाही वॉक का इनेकाद किया गया। प्रिंसिपल सिम्स प्रोफेसर डॉक्टर ज़ोहरा खानम ने खासूस शिरकत की। एचओडी न्यूरो साइंस से डॉक्टर अदनान ने सदारत की। सर्विसेज इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज में दिमागी बीमारी मिर्गी के कौमी दिन की मुनासबत से सेमिनार और आगाही वॉक का इनेकाद किया गया। डॉक्टर तलबा और दीगर अमले की बड़ी तादाद ने आगाही वॉक में हिस्सा लिया। मुकर्ररीन का कहना था कि इस सरगर्मी का मकसद मिर्गी के मर्ज, इसके इलाज और एहतियाती तदाबीर से मुतल्लिक अवाम में शऊर उजागर करना है। प्रिंसिपल का कहना था कि बरवक्त तशखीस और दुरुस्त इलाज से मरीज मामूल की ज़िंदगी गुजार सकते हैं। डॉक्टर अदनान ने कहा कि मिर्गी ऐसा मर्ज है जिसे ला इलाज समझा जाता है, हालांकि जदीद तिबी सहूलियात के जरिए इसका मुअस्सर इलाज मुमकिन है। अब यहाँ पर आपको बताएं, चप्पल बरसगीर की सकाफत का एक अहम हिस्सा है। चप्पल ना सिर्फ रोज़मर्रा इस्तेमाल की चीज़ है बल्कि रिवायती लिबास का लाजमी जुज़ भी समझी जाती है। चप्पल ने वक्त के साथ अपनी शक्ल, डिज़ाइन और मयार में नुमायां तब्दीलियाँ देखी हैं। मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। नौरेजी, पिशावरी और सिंधी चप्पल एक रवायती पहचान है। ये मजबूत चमड़े से तैयार की जाती है और इसकी खास पहचान इसका अगला बंद डिजाइन और मजबूत तिल्ला होता है। अंदरून टेक्साली गेट में उस्ताद दुरानी ने कहा कि वो गुज़श्ता 50 सालों से खालिस चमड़े के इस्तेमाल और हाथ की सिलाई से आरामदेह और पायदार चप्पल तैयार करते हैं। तकरीबन 50 साल से इसको कर रहे हैं, बल्कि 50 से भी ज़्यादा होंगे इसको काम को कर रहे हैं। ये मैंने इसको 14 साल काम सीखने में लगाए हैं। तो अब अल्लाह की मेहरबानी है कि जो चीज़ भी लेदर की बनती है ना, शूज़ हो, जूती हो, पर्स हो, कुछ भी हो, लेदर की हो, तस्वीर दिखाएं और बनवाएं। पहले अशरे का इख्तिताम होते ही शहरियों ने ईद की तैयारी के लिए मनपसंद और मयारी चप्पलों की खरीदारी शुरू कर दी। मैं टंगसाली गेट लाहौर में आया हूँ जूती खरीदने के लिए, और इधर बहुत म्यारी जूती है, मशहूर मरूफ चीज़ है, और ये फर्स्ट हफ्ता है, तो आगे से में भी हो सकता है माल नहीं भी मिलता, तो हम इंशाल्लाह ख़रीद के लिए आए हैं। सबसे पुराना बाज़ार है, इधर से जूता 1 नंबर मिलता है और तिल्ले वाली सबसे अच्छी मार्केट यही है। चप्पल महज जूता नहीं बल्कि रवायत, सकाफत और शिनाख्त की इलामत है। चाहे पिशावरी हो या सिंधी, हर तर्ज की चप्पल अपने इलाके की सकाफती झलक पेश करती है। कैमरामैन साकिब भट्ट के साथ अबू बकर शेख, सिटी 42। रमज़ानुल मुबारक का पहला अशरा ख़त्म होते ही बाज़ारों में रश बढ़ गया है। नन्हे बच्चे ईद की खरीदारी के लिए वालिदैन के साथ मार्केट पहुंच गए हैं। कपड़े और जूतों की दुकानों के साथ साथ ख़ुसूसी स्टॉल भी सज गए हैं। बाजारों में रंग बिरंगे मलबूसात, जूते और चूड़ियां सजी हुई हैं, मगर ज्यादा रश बच्चों के कपड़ों की दुकानों पर नजर आ रहा है। वालिदैन का कहना है कि ईद की असल खुशी बच्चों की मुस्कुराहट से जुड़ी होती है, इसीलिए सबसे पहले इनकी खरीदारी मुकम्मल की जा रही है। महंगाई के बावजूद माँ बाप अपने बजट में रहते हुए बच्चों की पसंद को तरजीह दे रहे हैं। पहले ये होता है, पहले बच्चों के कपड़े अच्छे से ले लें, बाद फिर हम अपने देखते हैं रेट वगैरह क्या। अभी रेट तो जरा हाई है,
लेकिन कर रहे हैं, देखते हैं कोई बच्चों को पसंद आया फिर उस हिसाब से जो रेट बनेगा मुनासिब हम ले लें। मैंने अपने मामा पापा से जिद करके कपड़े लिए हैं। मैंने अपने मामा पापा को कहा है मैंने अभी लेने हैं, मैंने ईद पे नए कपड़े पहनने, मैंने 3 सूट किए हैं। दुकानदारों के मुताबिक ईद से कबल सबसे ज्यादा फरोख्त बच्चों के मलबूसात की होती है। वालिदैन बच्चों की फरमाइश पूरी करने की कोशिश करते हैं। अभी बड़ों के इतने नहीं सेल हो रही है क्योंकि अभी 10वां रोज़ा है, तो अभी इतना बच्चों के ज़्यादातर सेल हो रहे हैं। बच्चों की वैरायटी ज़्यादातर यहाँ पे सेल हो रही है। ईद की तैयारियों में जहां बाजारों की रौनकें अरूज पर हैं, वहीं वालिदैन की तरजीह अपने बच्चों की खुशी बनी हुई है। कैमरामैन राना अजहर के साथ अफिया रिजवान, सिटी 42। इसी के साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से फिलहाल इतना है।